So your name is Hrusikesh Pawar. My full name is Hrusikesh Ghanshyam Pawar. Hrusikesh Ghanshyam Pawar. हाँ. So you'll start with the story of your name. So how did you get this? You did get this name. It is the combination of two gods. Rishi. Rishi means Bhagwan Shankar, and Kesh means Keshav, Bhagwan Vishnu. Okay. So who has given this name to you? My mom and dad. Okay. So where are you from? Where are you from, Rasai? I am from Parbhani. Where? Parbhani, Maharashtra. In Maharashtra, my native is, my birthplace is Parbhani. Okay. So just give us a little about your educational background and what you have done after your education and everything. I completed my Bachelor of Engineering in Computer Science with Shivaji University with first class in distinction. And later I joined Surya Institute, Surya Consultancy. I'm working there as a manager post from past 3 years. So what are your key responsibility areas? What are your KRAs and What? at your company? So what are your KRAs at your company? Overall, all the administration I am looking for the institution means it is affiliated to all over India. It is the faculty provided institution. All the faculties all over India, faculty is provided with the help of Surya Consultants. Okay, so I These still are did not the get what is your roles and responsibility in your company. my role and responsibility in my company is to handle all the administrative related work, which is related to accounting. All the interviews of faculties are taken, or how they are placing, where they are placing. I'm looking all the things. Okay. Since when you are working there? I'm working there from 2017. 17. So what's your why did you get interested in this public policy program? I am interested because I go through a lot of public policy and government policies from past 3 to 4 years after my completion of graduation, and I see the lot of lacunas is there in public policies are on paper they are very good, but when it is when the time of implementation came, lot of public policies are not implemented as per which are on the paper itself. So can you give some examples of that? Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana, lot of paperwork and lot of research already done on them, but when it is, can I talk in? Yeah, you can talk in whatever language you are comfortable with. The Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana is not means. Speak in Hindi, no problem. So if you can tell your answers in Hindi only. हिंदी में बात करते हैं. मीन्स सर ऐसे हिंदी में बात किया तो इंटरव्यू में चलेगा क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं है. That's why I'm asking you. बोलो. हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना मीन्स पेपर वर्क पे बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होता है, और इसी वजह से जो स्कीम मीन्स एक्चुअल जो देना चाहती है पब्लिक के लिए वो दे नहीं पाती. तो मतलब how do you know that? मतलब tell me what is written there in this paper पे क्या लिखा हुआ है and how they are not able to provide that. Reason क्या है? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि they are not able to implement the policy as per they have written in the policy document? पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें लिखी गई है सर. मुझे एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा है अभी दूसरे अदर स्कीम्स के साथ. तो मैं पॉलिसी बताओ. दूसरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना.
तो उज्ज्वला योजना में मीन्स गैस कनेक्शन हर घर के लिए उन्होंने मीन्स देना देना डिक्लेयर किया था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का बात आया तो उसमें माल प्रैक्टिसेस भी बहुत हद तक बढ़ गया, क्योंकि जो सब्सिडी वाले सिलेंडर्स है जो जिनको मिलने चाहिए थे बीपीएल फैमिलीज, उनके नाम पे फॉल्स रजिस्ट्रेशन होने लगे, और उसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पॉलिसी का वो ठीक तरीके से हुआ नहीं। सो अगर ये लैकुनास हैं और ये प्रॉब्लम है, सो स्टिल व्हाई डू यू वांट टू डू पब्लिक पॉलिसी? इसीलिए तो ये लैकुनास है और ये प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम्स मैं ग्राउंड रियलिटी मैंने भी बहुत नज़दीकी से देखा है, तो मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम्स छोटी छोटी है, लेकिन ये बड़ी होकर पॉलिसी को जो पेपर पे बनाई है उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो यही लैकुनास को ओवरकम करने के लिए मैं पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में ज्वाइन करना चाहता हूँ। सो हाउ डू यू थिंक कि वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी कि तुम उस लैकुना को फिनिश करो और उस प्रॉब्लम को दूर करो? क्या तो हाउ डू यू नो दैट कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि तुम उस लैकुना को दूर करो? और अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं तो बनानी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, और ज्वाइन होकर ग्राउंड रियलिटी पे जाके कैसे काम करना। बनाओगे, कैसे बनाओगे? कैसे बना जब ज्वाइन हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी है, हमें सिर्फ उसको जाके ज्वाइन करना है, क्योंकि हमको प्रॉब्लम्स पता है, तो हमको उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं सिर्फ तो जाके। कौन तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देगा फॉर दिस रोल? क्या कौन एम्प्लॉयमेंट देगा, मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन विल हायर यू? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देगी इस लैकुना को दूर करने ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर मीन्स जो ये पॉलिसीज बनाते हैं, की? वो पॉलिसीज में जिनका मीन्स एजुकेशन हुआ है, उनको नीति आयोग या अदर जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज है, उनसे ये वहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ जाके काम कर सकते हैं। So, नीति आयोग का क्या रोल होता है पॉलिसी बनाने में? नीति आयोग का मीन्स ओवरऑल सभी सरकमस्टेंस में रोल्स होता है, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री और इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सभी मिनिस्ट्री उसी के अंडर रहती तो हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? राइट नाउ आई कांट मीन्स अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट वर्क ऑफ नीति आयोग ये क्या है, मतलब सबसे हाल फिलहाल में ऐसा कोई नीति आयोग का वर्क है या फिर उनका सजेशन है टू एनी मिनिस्ट्री, वो क्या हो? नीति आयोग का सजेशन टू एनी मिनिस्ट्री, सर आई डोंट, याद नहीं आ रहा। ओके, सो अगर आपको मौका मिले तो किस फील्ड में आप पॉलिसी बनाना चाहोगे और किस फील्ड के पॉलिसी पे काम करना चाहोगे? मैं पॉलिसी क्लाइमेटोलॉजी और एजुकेशन के पॉलिसीज पे मैं काम करना चाहता क्लाइमेट और एजुकेशन पे। हूँ। हाँ, तो एजुकेशन के जो नई पॉलिसी है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन? ये पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी से क्यों अलग है? और नए वाली एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके जो भी मीन्स एज फैक्टर है, अबव 15 इयर्स एज, उनको भी कंसिडर किया गया है, और टारगेट रखा गया है कि 2030 तक मीन्स सभी लिटरेट हो जाए, 100% लिटरेसी का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं था? पुराने एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था, ये रिसेंटली अपडेट हुआ है। ठीक है ऋषिकेश, विल बी ओवर विद दिस इंटरव्यू नाउ। मैं थोड़ा फीडबैक दे दूं क्योंकि अभी तुम्हें ना थोड़ा और वो करना पड़ेगा, मतलब एफर्ट करना पड़ेगा टू गेट प्रिपेयर्ड। एक तो उस कोर्स के करिकुलम को पढ़ो, ठीक है?
जो MPP का कोर्स करिकुलम है। सिमिलरली जितने भी यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई होती है, हाँ, वहाँ के भी करिकुलम्स को पढ़ो, ओके, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट यू विल बी लर्निंग देयर, और आगे फ्यूचर गोल तुम और क्या बना सकते हो, है ना। दूसरी चीजें क्या है कि जो नीति आयोग है या जो भी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में थोड़ा पढ़ो, और जो जिस एरिया को तुमने सेलेक्ट किया है एजुकेशन और क्लाइमेट, उसमें क्या हो रहा है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बहुत अलग है आपके जो पुराने वाले एजुकेशन पॉलिसी से, तो तुम जो डिफरेंसेस बता रहे हो बहुत कम है। दूसरा, तुम्हारा जो वर्क एक्स है वो मुझे मतलब पता नहीं, आई फील लाइक इट इज फेक, है ना, क्योंकि तुम एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बताओ। ओके, मीन्स पूरा डिटेल में बताना है। हाँ, जब हम तुमसे बोलते हैं कि तुम्हारा रोल और प्रोफाइल क्या है, तो तुम उसको डिटेल में बताओ, है ना। जो भी तुम बता रहे थे बहुत सुपरफिशियल लग रहा था, मतलब देयर वाज अ बिग डाउट कि वो तुम करते भी हो कि नहीं। सो टेल मी ऑनेस्टली, डू यू इवन रियली वर्क देयर, और तुमने ऐसे ही बना लिया है वर्क एक्स वहाँ पे? नहीं नहीं, आई एम वर्किंग है। सो देयर वाज नो, मतलब वो कन्विक्शन नहीं था तुम्हारी आवाज में, है ना, अबाउट योर वर्क एक्स। सो मतलब एवरी क्वेश्चन दैट आई आस्क यू, वहाँ पे बहुत सारी कमियां थी, है ना। ओके, जैसे व्हाई डू वांट टू डू पब्लिक पॉलिसी, दैट वाज अगेन नॉट क्लियर। अब जैसे पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है ना, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होती, तो उसके एग्जांपल्स नहीं है तुम्हारे पास। तो इधर टेल समथिंग व्हिच यू लिटरली नो एग्जांपल्स के साथ, है ना। जैसे योजना योजना का क्या था पेपर में, है ना। कभी कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा है तुमने? पॉलिसी डॉक्यूमेंट मैं अभी हाँ, रिसेंटली पढ़ा है, पॉलिसीज के किसका? डॉक मीन्स मैंने बहुत सारी पॉलिसीज 20-22 पॉलिसी सिर्फ देखी कौन ऑनलाइन। देखे, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी बनती है ना, तो उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे होता है। वो नहीं देखा है मैंने। वैसा कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा है। तो नहीं। तुम पढ़ो कुछ, अभी तो मतलब टाइम है तुम्हारे पास 15 और 16, तो 3 दिन का टाइम है ना। थोड़ा हाँ, उसको और डेप्थ में ले जाओ, क्योंकि केवल पॉलिसी इम्प्लीमेंट सही से नहीं होती ये प्रॉब्लम नहीं होता, पॉलिसी सही बन भी नहीं पाता। हाँ, पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी। हाँ नहीं, वो लोग रिसर्च नहीं कर पाते पॉलिसी के लिए क्या नीड है, ये नहीं समझ पाते। जो पुरानी पॉलिसी है उसके ऊपर नई वाली पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगी ये भी नहीं पता होता, तो कई सारी और चैलेंजेस हैं, है ना। ओके, तो उसको आप करो, ठीक है। सर आप मुझे बोलिए क्या क्या करना है, मैं वो पूरा करता हूँ। मतलब जो भी तुमसे क्वेश्चन अभी पूछा गया है ना, उस सब में तुम्हारे जवाब में कमी था। ओके, सो एवरीवेयर यू नीड लिटिल मोर रिसर्च, थोड़ा और कंटेंट चाहिए वहां पे, ठीक है। तो तुम पॉलिसीज के बारे में पढ़ो, पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ो, नीति आयोग के बारे में पढ़ो, पॉलिसी मेकिंग के चैलेंजेस के बारे में पढ़ो। हैव यू सीन ऑल द वीडियोस जो पॉलिसी मेकिंग पे हमारे यहाँ डला हुआ है? पॉलिसी मेकिंग पे जो सभी है वो नहीं देखे मैंने, लेकिन जो आप एमपीपी पे जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए 3 वीडियोस है, नहीं, तो वो वो एमपीपी पे नहीं, जो तुम उसको उस पे देखो ना, जो पॉलिसी पे ही एक वीडियो होगा, पॉलिसी पे ही लेक्चर होगा, ओके। ठीक है। वो देखो तुम, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो, मैं कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। एक तो ये है हाँ, वीडियो हमारा, अंडरस्टैंडिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये वाला वीडियो देखा है तुमने? नहीं। तो ये सब देखो ना, तब थोड़ा और समझ में आएगा तुम्हें। हम्म, ठीक है, इसको थोड़ा और एफर्ट करो।